Hi guys, how have you been? So this video is absolutely useful for all of you who is looking forward to get settled in developed countries like either Canada, Germany, Australia or New Zealand. तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्रीज़ जो है कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जॉब्स की डिमांड्स कितनी है, किस तरीके से आप लोग वहाँ पे पीआर ले सकते हैं। उसी तरीके से ना केवल हेल्थ एंड सेफ्टी, दिस विल बी यूजफुल टू एवरीवन. So cut the crap and we will be going directly into the subject. I'm not gonna waste your time, I mean your precious time, by speaking about the benefits what Canada is providing. I guess everyone knows about that. So I'm not gonna talk about the programs also, because there are lots of stuffs which is available in the internet and you can easily check back. But in this video I am going to tell you about what factors you have to consider and what is the reality before you स्टार्ट प्लानिंग अप फॉर द माइग्रेशन. तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इंटरनेट पे बहुत से कंटेंट्स अवेलेबल है कनाडा के बारे में, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट पे आऊँगा जिसके बारे में हम लोग देखेंगे. आज की इस वीडियो में मैं किसी भी प्रोग्राम्स के बारे में या प्रोग्राम्स के डिटेल के बारे में, कनाडा के जो बेनिफिट्स है इसके बारे में बता के आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा. बस मैं आपको उस फैक्टर्स के बारे में बताऊँगा जिसके बेस पे आपको प्लान करना पड़ेगा बिफोर यू माइग्रेट टू कनाडा और एनी अदर कंट्रीज. तो वो कौन कौन से फैक्टर उसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में. जैसे कि मैंने ये जो वीडियो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी जॉब्स के लिए ही नहीं, बाकी दूसरे सभी प्रोफेशनल्स के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड है बहुत से इंफॉर्मेशन से इंटरनेट पे. तो मैं आपको द रियल फैक्ट्स में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में. द फर्स्ट फैक्ट इज नो एजेंट्स. यस, if you are looking forward to migrate to Canada, then I will personally suggest you to do all the paperwork without help of any agents, because if you take their help, they will ruin everything. The agents are good if you are applying for a student visa or if you have good score in CRS, in entry pool. For student visa, they can easily help you by recommending some good colleges, or they have tie up with colleges in Canada. Similarly, if you have good score in CRS entry pool, they can help you with documentation. Otherwise, it will be very difficult for you to manage the agents. They will take the advance amount from you and they will promise you that they will very soon doing all this paperwork, everything, and they will select a suitable program for you. But my dear friends, I bet you are gonna lose your money. And the funniest part is you don't have any legal options available to go against them. I have my friends who have applied to some agents and they have given their complaints in the consumer websites, but what these agents are replying back to them are, this amount, the advance amount which they are charging is for data processing, and of course that money is not refundable. Well, I'm sure I'm gonna get some good hate comments for this feedback, but believe me friends, this is the fact. This is what you are gonna get with the agents, so don't waste your precious time, your precious money with these agents. तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1 जो है वो यही है कि एजेंट्स को यूज़ नहीं करने का. अगर आप लोग एजेंट्स को यूज़ करोगे, एजेंट्स की हेल्प लोगे, तो आपका जो कनाडा का जो ड्रीम है ना वो रुक जाएगा, ड्रीम ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा के लिए इतने फेक एजेंट्स है, आपको ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से रियल एजेंट्स है, कौन से एजेंट्स हेल्पफुल है. क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा के लिए देख रहे हो, या फिर आपका जो स्कोर जो रहता है सीआरएस जो स्कोर है वो एंट्री पूल में अगर ज़्यादा है, तो आप लोग एजेंट्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को इसी करने के लिए. लेकिन अगर आपके पास में स्कोर नहीं है, अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो
आई विल सजेस्ट एजेंट्स के लिए मत जाइए, क्योंकि एजेंट्स आपको बहुत से फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि AIPP प्रोग्राम है, PNP प्रोग्राम है, YCP है। लेकिन ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब प्रोग्राम्स के लिए कुछ क्राइटेरियाज है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन या जो भी उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये एजेंट्स आपके पास से एडवांस अमाउंट लेते हैं। उसके बाद में कुछ रिप्लाई आने वाला नहीं है आप लोगों को। आपका जो पैसा है वो चला जाएगा, आपका जो टाइम है वो चला जाएगा। अगर उसी जगह पर अगर आप आपकी साइड से डॉक्यूमेंटेशंस करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका स्टेटस कहाँ पे है और आप फर्दर क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। तो एजेंट्स को मत यूज़ कीजिए, मेरा यही सजेशन है। इसके अलावा लीगल ऑप्शंस भी नहीं रहेगा आपके पास में। अगर आपने पैसा दे दिया तो आपका पैसा गया, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर वेबसाइट्स देखोगे इंडिया के तो उसमें बहुत से लोगों ने केसेस फाइल किए हुए, लेकिन कोई रिप्लाई कुछ होने वाला नहीं है। पैसा किसी को रिफंडेबल अमाउंट नहीं है बोल के वो लोग आपको फीडबैक देंगे। वो लोग यही बोलेंगे कि ये जो आपकी जो एंट्री पूल में जो प्रोफाइल बनाई हुई है दोस्तों, उसके लिए वो पैसा चला गया, वो लोग बोलेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एजेंट्स की हेल्प मत लीजिए कनाडा के लिए, स्पेशली कनाडा के लिए मत लीजिए। आप खुद अपनी साइड से खुद कर सकते हैं। वेल, द सेकंड फैक्ट इज अबाउट द IELTS. Friends, believe me, IELTS is must for all the programs in Canada. This is the reality. The only thing is, for every program, for each and every program, the score band will vary. That is the only requirement in Canada. There is nowhere written that IELTS is not required. Now, definitely, some of you will be thinking there is a program which is YCP, Yukon Community Pilot Program, where they have mentioned, like, not the officials of the Canada government have mentioned, but most of the YouTubers in the YouTube have mentioned the IELTS is not required, IELTS score is not mandatory to apply for the program, right? So you have to understand a fact that YNP, the Yukon Nomination Program, is a main program, and under this program there are different small pilot programs I'm running. And this YCP, which is Yukon Community Program, is a part of Yukon Nomination Program. So actually, for YCP, the employers, for this YCP program, the employers are not asking IELTS. But once you get an offer, job offer from the employer, they will be submitting a nomination form to the Yukon government. And for the nomination, again in that form, IELTS is required. So this is the fact. While applying the jobs, the employers are not looking for your IELTS score, nothing. They are not asking for an IELTS score, but when you apply for the work permit or when you apply for the PR later, you have to submit a nomination form to the Yukon government. And while submitting this Yukon government, this form, you have to submit your IELTS score. So again, IELTS is important. तो यहाँ पे जो फैक्ट है दूसरा वो है IELTS स्कोर। बहुत से लोगों का कहना है कि IELTS जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। IELTS बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कनाडा के लिए जब आप ट्राई करते हो तो IELTS बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेरी करता है। जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपका जो स्कोर है वो डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आपका जो स्कोर है वो डिफरेंट रहेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से यूट्यूब में बहुत से वीडियोस अगर आप देखोगे तो बहुत से यूट्यूबर्स छाप रहे, मैं बोलूँगा कि IELTS रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि अभी एक नया प्रोग्राम निकला YCP, यूकोन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम, जहाँ पे आपको आप जब जॉब ऑफर लोगे तो आपको IELTS की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली जब आप अप्लाई करते हो तो IELTS की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो YCP प्रोग्राम जो है, जिसे हम यूकोन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम कहते हैं, वो जो है आता है यूकोन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर। यूकोन गवर्नमेंट का एक नॉमिनेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर आता है YNPP जिसे कहते हैं हम लोग। उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स है, उसका एक पोर्शन है YCP, यूकोन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम। तो YCP में आपको IELTS की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप वर्क परमिट में आने के बाद जब आपको PR के लिए अप्लाई करना पड़ता है, राइट? तो PR के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपके एम्प्लॉयर जो होते हैं वो आपके नॉमिनेशन को फॉरवर्ड करते हैं यूकोन गवर्नमेंट में। तो यूकोन गवर्नमेंट उस टाइम पे
YNP का जो फॉर्मेट है उसमें IELTS का जो स्कोर है वो पूछता है, तो IELTS जो है वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात दोस्तों, आप अपना एक कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कोई बंदा, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप मान लो, अगर आप इंडिया में किसी एक स्टेट में जाते हो जहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलती है, और वहाँ पे अगर आप वहाँ की किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, सपोज अगर आप वहाँ के गवर्नमेंट जॉब में काम करना चाहते हो, तो आपको लैंग्वेज तो पता होना ही ज़रूरी है। अब मान लिया इंडिया में इंग्लिश लोगों को पता है इसलिए ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप GCC में जाते हो, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हो, वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में मिनिस्ट्रीज़ में ज़्यादातर, जो दुबई की मैं बात नहीं करूँगा, जो दूसरे जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे कुवैत ले लीजिए या फिर ओमान ले लीजिए, ऐसे कंट्रीज़ में इंग्लिश जो होता है वो कम होता है, यूसेज कम होता है। तो वहाँ पे जब आप जाओगे, मिनिस्ट्रीज़ में कहीं पे भी काम के लिए जाओगे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। आप कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, वहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ में जब जाओगे तो वो इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, वहाँ पे उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वहाँ पे चलता है। तो आप खुद सोचो, अगर आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे अगर आपको वहाँ के लैंग्वेज नहीं पता, वहाँ पे आपको वहाँ की रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स अगर आपको पता नहीं, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो मेरा यही मानना है कि ये जो IELTS है उसको आप एक बर्डन, ये उसे एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन के रूप में मत देखिए। ये जो IELTS है, जो वो गवर्नमेंट ने इसलिए सेट किया हुआ है कि आप जब वहाँ पे जाओगे तो आप कंफर्टेबल रहो, क्योंकि हमेशा जॉब जो होता है, जॉब करना, एक काम वर्क के लिए बाहर जाना सब लोगों का प्रायोरिटी रहता है। आप भी चाहते हो कि आपको एक अच्छा काम मिले, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छा काम मिले, लेकिन जब हम लोग दूसरे देश में जब माइग्रेट करते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज होता है वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर इंडियंस जो भी है, हम लोग को हिंदी इंग्लिश पता रहता है, लेकिन IELTS इसलिए इन लोगों ने रिक्वायर्ड किया हुआ है क्योंकि अगर ताकि आप लोग कंफर्टेबल रहे उनके लैंग्वेज से, राइट। इंग्लिश में आप थोड़ा कंफर्टेबल रहे, क्योंकि जब आप कैनेडियंस लोगों से बात करोगे या बाहर के वहाँ पे दूसरे जो एशियंस, फिलीपाइंस, ऐसे बहुत से लोग वहाँ पे काम करते हैं, वो लोग जब आपसे बात करेंगे तो आप कंफर्टेबल रहो, उनको समझ सको, इसलिए IELTS रखा हुआ है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अगर IELTS नहीं है वहाँ पे इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप क्या हिंदी यूज़ करोगे? तो प्लीज़, ऐसे IELTS रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे न्यूज़ पे या ऐसे जो मिथ है उस पे बिलीव मत कीजिए, ये सब फॉल्स इन्फॉर्मेशन से। IELTS रिक्वायर मैंडेटरी है, PR के लिए अप्लाई करोगे या बाद में अगर आपको सेटल करने का है वहाँ पे कनाडा में, तो IELTS रिक्वायर्ड है। तो IELTS के लिए इसलिए मैं बोलूँगा कि आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्कआउट करना शुरू कीजिए। Hey friends, the third fact is LMIA, the Labor Market Impact Assessment. So there are lots of agents who used to claim that if you apply through them, they will be providing the LMIA to you, which is another fact. The labor market impact assessment is a very difficult option to get. Yes, there are certain people available who have received this option on their own. But believe me, those people who have received the LMIA in Canada is because their job profession is quite different from ours. LMIA is awarded to certain professions for which the people or for which the workforce is not readily available in Canada. For example, if you are a scientist, I must say the nuclear scientist, or if you are into some higher profession, or your job is like the rare job, I must say, then there are chances of getting LMIA. Otherwise, don't believe the agents and don't waste your money or time for LMIA. To process a LMIA, lots of documentation work has to be done by the employer. They have to deposit around thousand Canadian dollars to the government, and they have to declare in government that this uh, uh, professionals for this position is not available in Canada,
because the Canadian government is giving the priority to the people who are already there on PR. So if the people are not there in that pool, or if they are not in the PR list, then only they will go for the LMIA. So this is the concept of LMIA. तो दोस्तों जो अगला जो तीसरा फैक्ट है वो है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं जिसे। अब एजेंट्स लोगों ने जो होता है, एजेंसी ने स्टार्ट कर दिया है LMIA ऑप्शन बोल के बहुत से फेक ऑफर्स इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ LMIA क्या होता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। LMIA जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर, कनाडा का जो एम्प्लॉयर होता है, वो एम्प्लॉयर कैनेडियन गवर्नमेंट से बोलता है कि मैं बाहर से बंदे को लूँगा, उस वो जब इधर आएगा उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो भी है वो सारा मैं करूँगा, और उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लूँगा। इसे हम लोग LMIA कहते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि उस बंदे को कैनेडियन गवर्नमेंट को एक फ़ाइल सबमिट करना पड़ता है, जिसमें उसको अराउंड 1000 कैनेडियन डॉलर, आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कितना होता है, 1000 कैनेडियन डॉलर गवर्नमेंट को देना पड़ता है। प्लस उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये जो LMIA जॉब के लिए जो बंदा है, ये या जो प्रोफेशनल्स है इस काम के लिए जो बंदे हैं वो कनाडा में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ले रहा हूँ, वो डिक्लेयर करना पड़ता है। अब आप लोग सोच लो, कनाडा में इतने लोग, कनाडा का जो इमिग्रेशन है वो आज से या कल परसों से स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत पहले से ही चल रहा है। कितने लोग वहाँ पे PR में हैं ऑलरेडी। अब क्या गवर्नमेंट जो होता है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ही इफेक्टिव गवर्नमेंट है। वो लोग क्या करते हैं कि पहले जो होते हैं वहाँ पे PR में जो लोग हैं, उन लोगों का जो पूल होता है ना, जो एक्सप्रेस एंट्री में जो भी लोग हैं PR में, या जिन लोगों को PR मिल चुका है, उन लोगों को वो लोग पहले प्रायोरिटी देते। क्योंकि भाई आपकी कंट्रीज़ में ऑलरेडी PR में लोग आए हुए पे इतना पैसा खर्च करके, तो पहले आप लोग को उन लोगों को जॉब देना पड़ेगा ना। क्यों बाहर के लोगों को जॉब देंगे? इतना पैसा खर्चा करके बंदा आया हुआ है, उस बंदों को इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। क्योंकि PR का मतलब क्या होता है, आपको पूरे बेनिफिट्स मिल रही है ना गवर्नमेंट की, कैनेडियन गवर्नमेंट की पूरी बेनिफिट्स मिलती है आपको। तो जब ऑलरेडी गवर्नमेंट एक फैमिली को या एक बंदे को PR की फैसिलिटीज़ दे रही है, तो वापस बाहर से एक दूसरे बंदे को क्यों लेके आए? तो उसके पहले क्या करती है कैनेडियन गवर्नमेंट जो होती है, जितनी भी फैसिलिटीज़, जिसे भी जो भी जॉब होते हैं वहाँ पे जो PR में जो लोग होते हैं उनको प्रायोरिटी देती है, उनको पुश करती है। उसके बाद में जो अगर समझ लीजिए कि अगर वहाँ पे एक साइंटिस्ट की ज़रूरत है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की ज़रूरत है, या फिर बड़े एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है, बैंकर की ज़रूरत है मान लीजिए, तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए क्या होता है, अगर वहाँ पे लोग नहीं है तो ये LMIA जो कंसेप्ट है वो काम करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को सबमिट करता है कि मुझे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो इंडिया में है या कहीं पे भी दूसरे कंट्रीज़ में है, मुझे वहाँ से लाने का है। तो उस हिसाब से आपको वो जो एम्प्लॉयर जो होता है वो गवर्नमेंट को 1000 कैनेडियन डॉलर सबमिट करता है, और वहाँ पे लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो है वो फॉर्मेट वो चालू करता है, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि यहाँ से मुझे आदमी नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बाहर से ले रहा हूँ। तो ये है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इस पे भी बहुत से वीडियोस चल रहे हैं यूट्यूब में, बहुत से यूट्यूबर्स ने पोस्ट कर दिया है कि LMIA में आप जा सकते हो, LMIA मिल जाता है। इसके अलावा जो बहुत से एजेंसी जो है वो लोग भी आजकल यूट्यूबर बन चुके हैं, तो वो लोग भी पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन सब में मत फंसना, LMIA मिलना मुश्किल है यार। मिल सकता है आपको, आपका अगर जॉब थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो। और दूसरा ऑप्शन भी है, कुछ प्रोग्राम्स में भी मिल जाता है LMIA मिलता है, जैसे AIPP में मिल जाता है आपको, AIPP के कुछ प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स में भी आपको मिल सकता है LMIA, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। Now the last fact is, friends, the people used to think, they have the mindset like they will go to Canada through agencies and they will do any unskilled jobs like the gardening, or they will become the truck driver, and the later they will switch to the skilled jobs. This is the mindset of the people, especially who are going to Europe, also who are targeting the Canada. So the fact is, it is not possible to switch from the unskilled to skilled if you go in this job category. And the second thing is, if you are going through these agents, maybe you will be going on work permit as a gardener or as a truck driver. But there is no guarantee that you
can get a PR. What if the employer or if the agency through which you are going is not applying for the PR, if they are giving you the work permit only for the 2 years, right? It's quite possible. So that is another fact. Don't try that. तो यहाँ पे सॉरी जो लास्ट जो फैक्ट है वो दोस्तों वो है कि अनस्किल्ड कैटेगरी से स्किल्ड कैटेगरी में मैं जाऊँगा एजेंट थ्रू। अब जैसा होता है हम लोगों का माइंडसेट रहता है बहुत से लोगों का कि हम लोग यूरोप में छोटे छोटे कामों के लिए जाएंगे, अनस्किल्ड इसमें जाएंगे, वहाँ पे फिर उसके बाद में हम लोग स्किल कैटेगरी में घुस जाएंगे। यूरोप में नहीं, कनाडा में जो लोग जाते हैं उनका भी माइंडसेट रहता है। या फिर विजिटिंग वीसा में जाएंगे, कनाडा में विजिटिंग वीसा में हम लोग जाएंगे, उसके बाद में हम लोग वहाँ से वहाँ पे वर्क परमिट में उस वीसा को ट्रांसफ़र करेंगे, चेंज करेंगे, रहता है। दोस्तों ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी जाते हो ना, अनस्किल्ड कैटेगरी में जाते हो, जैसे गार्डनर या फिर ट्रक ड्राइवर के उसमें जाते हो और बाद में आप सोचते हैं कि मैं वहाँ से स्किल्ड कैटेगरी में बदल दूंगा, पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी मत करना। यूरोप में तो स्पेशली करना ही का ही नहीं, क्योंकि अगर आपने कर दिया तो वहाँ पे इमिग्रेशन में अगर आपकी उसमें आपका प्रोफेशन रजिस्टर हो जाता है तो बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल है। ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब फेक इन्फॉर्मेशन से जो यूट्यूब में अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं करने का है। उसी तरीके से एजेंसी से, बहुत सी एजेंसी से नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जो लोग क्लेम करते हैं कि आप लोग को गार्डनर के इसमें ले जाएंगे, ट्रक ड्राइवर के इसमें ले जाएंगे, प्लीज़। और ये लोग चार्ज करते हैं अराउंड 8 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक भी चार्ज करने वाले एजेंसी से। तो दोस्तों इन सब में मत पड़ो, क्योंकि मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अनस्किल्ड में उसमें से जाओगे, स्किल्ड में तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप जा भी रहे हो किसी एजेंसी के थ्रू अनस्किल्ड कैटेगरी में, आपको सपोज आपको गार्डनर का जॉब मिल जाता है वहाँ पे, अब वो वर्क परमिट रहता है आपको। तो अगर उस वर्क परमिट पे अगर आप 2 साल के लिए काम करते हो, आपको कोई गारंटी नहीं रहता है कि वो आपको पीआर मिल जाएगा। भाई पीआर मिलना कुछ उसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है। वो आप वर्क परमिट का आपका ख़त्म हो जाएगा, एम्प्लॉयर आपको वहाँ से भेज देगा। तो आपने ये जो 25 लैक्स, जो 10 लैक्स जो दिया हुआ है, I mean 10 लाख, 25 लाख जो आप लोग देते हो, वो आपके हाथ से चला जाएगा। आपको पीआर भी नहीं मिलेगा। वो लोग आपको बोलेंगे कि 2 साल का वर्क परमिट है, उसके बाद में पीआर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आप 2 साल वहाँ पे काम करोगे, आपको जो मिलने का था वो पैसा लोगे, आप वापस आ जाओगे। तो जितना पैसा आपने दिया उतना पैसा भी आप शायद कमा नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली कनाडा, यूरोप में आप लोग जाओ, लेकिन पीआर के लिए जाओ, क्योंकि अगर आपको पीआर मिलता है तो आपको बेनिफिट्स है। अगर आपको पीआर नहीं मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं। उससे बढ़िया तो गल्फ़ कंट्रीज़ में आप फोकस करो। तो ये जो फैक्ट्स है वो सेफ्टी वालों के लिए भी, बाहर के जो प्रोफेशंस में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। तो आपके अगर कोई दोस्त होंगे तो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। Hey guys, so this is the first part, and surely in the second part I'm gonna tell you what all are the factors, like the education age, qualifications. Based on these factors, how you can select the program and how you can which all are the best programs available to migrate to Canada. So for the moment, bye bye, take care.